مقصد ہے اور یہی آج آپ کے سامنے پیغام پہنچانا۔ تو امام حسن کے بارے میں آپ سے ابھی یہ سنا کہ امام حسن نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی ہے کہ چاروں طرف جہاد ہی جہاد کا تذکرہ، لیکن اس کے باوجود ہم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ اتنا شجاع، اتنا بہادر کہ جو زمانے رسالت کے اندر بھی شجاعت کے جوہر دکھانے کو بےتاب ہے، اور جس کی بہادری بعد میں بھی ظاہر ہوئی کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں روایت یہ ہے کہ امام حسن کو امیر المومنین نے فتح سالار بنایا ہوا تھا، اور جنگ جمل اور جنگ صفین کی فتح میں امام حسن کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اتنا بہادر شخص جو پیغمبر کے زمانے میں بہادری دکھانے کو بے چین ہے، جو اپنے پاپا کی خلافت کے زمانے میں بہادری دکھانے کو بے چین ہے، جبکہ عمر اس وقت 32 سال کی تھی اور پیغمبر کی وفات کے وقت عمر 8 یا 9 سال کی تھی۔ 9 سال سے 32 سال کا زمانہ تو عین جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، عین شباب کا زمانہ ہوتا ہے، اور امام حسن نے اس وقت یہ منظر بھی دیکھا کہ میری مادر گرامی کے اوپر حملہ کیا گیا، یہ منظر بھی دیکھا کہ میرے گھر کے دروازے کو آگ لگائی گئی، یہ منظر بھی دیکھا کہ میرے پاپا کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو پھینک کے لے گئے، یہ منظر بھی دیکھا کہ میری ماں نے اپنے بالوں کو پھیلا کر پٹوا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور روایت سلمان فارسی کی ہے کہ جب جناب سیدنا نے پٹوا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہم نے یہ دیکھا کہ مسجد نبوی لرزنے لگی، اور ایک مرتبہ مسجد کی دیواریں کتنی بلند ہو گئیں کہ ایک اونٹ ان کے نیچے سے گزر کے جا سکتا تھا۔ یہ سارے منظر امام حسن دیکھ رہے، ایک عام لڑکا یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے باپ اور اس کی ماں کی اس طرح سے توہین ہو، اس کا عین شباب کا عالم ہو۔ 10 یا 11 سال کی عمر تھی، امام حسن شباب اور جوانی کے دور میں قدم رکھ رہے تھے، لیکن بالکل ثابت و ثابت اپنے مقام پر کھڑا ہو، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ مولا کو یہ کہنا پڑتا کہ بیٹا حسن تو نے جلد بازی کی، ذرا صبر سے کام لیتا۔ امیر المومنین نے جناب سیدنا کو پیغام بھجوایا سلمان فارسی کے ذریعے، یہ سلمان جا کر بنت رسول سے کہہ دو کہ اگر اپنے نانا اپنے بابا کے دین کو بچانا ہے تو اس وقت بددعا نہ کرے۔ لیکن امام حسن کا ایک قدم ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ امیر المومنین نے کوئی پیغام بھجوایا، مکمل صبر و صبر کے ساتھ تمام مناظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اتنی شدید توہین کوئی برداشت نہیں کر سکتا اپنے گھر والوں کی، خاص طور پر وہ بچہ کہ جو پیدا ہوا ہو ایسے گھرانے میں کہ جہاں ہر وقت تلوار اور تیر چلانے کا تذکرہ ہو، جو پیدا ہوا ہو ایسے گھرانے میں کہ جو اپنی شرافت اور عزت کو ہر چیز پہ ترجیح دیتا، جو پیدا ہوا ہو ایسے گھرانے میں کہ جس کی نگاہ میں جس کے پاس عزت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس عزت نہیں اس کے پاس کچھ نہیں۔ اس سب کے باوجود امام حسن نے صبر سے کام لیا، امام حسن نے سب سے کام لیا اور بالکل خاموش رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا پاپا بھی صبر و سب سے کام لے رہا اور امام حسن صاحب کی سیرت کے اوپر عمل کر رہے تھے۔ یہ تاریخ ہے انتہائی اہم واقعہ کہ امام حسن نے 9 سال کی عمر سے 25 سال کی عمر تک جو عین حالت شباب کی عمر ہے، جب انسان میں اتنا جوش ہوتا ہے کہ کوئی اسے نہ چھیڑے تبھی وہ دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس وقت امام حسن یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ پہلی خلافت میں میرے پاپا کے ساتھ ظلم ہوا، دوسری خلافت میں میرے پاپا کے ساتھ ظلم ہوا، تیسری خلافت میں میرے پاپا کے ساتھ ظلم ہوا، اور ایسے ایسے مظالم کہ جو کہ ہمارا مقصد خلافت راشدہ کو دیر محض لانا نہیں، اس لیے اسے فتح نظر کرتے ہوئے ایسے ایسے مظالم کے لوگ برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے احتجاج کیا۔ چنانچہ آپ کو ملے گا کتابوں کے اندر ابو ذر غفاری احتجاج کرتے ہیں تو شرامتن کر کے صحرا میں دفاع کیا جاتا ہے، ہمارے جابر احتجاج کرتے ہیں تو اتنا مارا جاتا ہے ان کو مسجد نبوی میں کہ ہمارے جابر کے جسم سے خون کا فوارہ بلند ہوتا ہے، اور اس حالت میں لوگ اٹھا کر مسجد نبوی سے ہمارے جابر کو لے گئے کہ جن کے بارے میں پیغمبر نے کہا تھا کہ ہمارا ان میں سے ایک ہے کہ جس کو جنت طلب کرنا چاہتی ہے، اس حالت میں لے گئے کہ ایک ہفتے تک لوگوں کو یقین نہ تھا کہ ہمارا زندہ ہے یا ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے احتجاج کیا تو اتنا مارا گیا کہ ان کی پپلیاں ٹوٹ کر رہ گئی، لیکن اس تمام حالت میں کہ جب دوسرے احتجاج کر رہے ہیں لیکن امام حسن اپنے بابا کی توہین کو دیکھ کر بالکل ثابت و ثابت ہے، بالکل صبر کی تصویر بنے ہیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ امام حسن اور حسین نے 1 سال یا روایتوں کے مطابق 6 مہینے کی بڑائش اٹھائی ہے، تو وہی صبر جو امام حسن کر رہے وہی امام حسین بھی کر رہے ہیں۔ یہ خیال ذہن میں نہ رہے کہ امام حسن سلو پسند تھے اور امام حسین ماشاءاللہ جہاد کے لیے تیار بیٹھے تھے، نہیں، ایک ہی کردار دونوں کا چل رہا ہے کہ دونوں صبر سے کام لے رہے ہیں۔ کوئی 22، 24، 25 سال کا 26 سال کا جوان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس طرح سے میرے باپ کی توہین کی جائے، ایسے ایسے توہین آمیز فکرے کہ جب ہماری آئندہ گفتگو میں آئیں گے تو ایک مرتبہ انسان ترس جاتا ہے کہ کس طرح امام حسن نے اور امام حسین نے سنا ہوگا، لیکن بالکل صبر و سب کی تصویر بنے ہوئے خاموش رہے تھے، اور اسی خاموشی کے اندر امام حسن نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ پورے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اگر امام حسن وہ کارنامے انجام نہ دیتے تو کبھی امام حسین میدان کربلا میں جہاد نہ کر سکتے تھے۔ امام حسین کے جہاد کی تمام تر بنیاد امام حسن کا کردار ہے، اسی لیے غور کریں پیغمبر اسلام کو اپنی 23 سال کی محنت کے باوجود 72 شامل ساتھی نہ مل سکے، امیر المومنین کو اپنے اتنے علم تقوی اور فضیلت کے باوجود 40 مومنین کامل بھی نہ مل سکے، امام حسن کو بھی صرف 3 یا 4 مومنین کامل ملے، لیکن امام حسین کو کم از کم 72 اور زیادہ سے زیادہ 100 کے قریب مومنین مل گئے۔ یہ کس کے سبب سے، یہ کس کی وجہ سے؟ یہ اس کام کی وجہ سے جو امام حسن نے خاموشی سے بیٹھ کر انجام دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن نے یہ دیکھا تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اب
हमारी गुफ्तगू तारीख से एक ऐसे मौजू पर जा रही है कि जिस पर आम इंसान और आम सुनने वाले ये एतराज कर सकते हैं कि हम तो इमाम हसन के मुतालिक सुनने आए थे, ये गुफ्तगू तो किसी और ही मौजू पर हो रही है। जैसा कि हमारी 5वीं तकरीर के बाद लोगों ने एतराज किया कि हम तो अमीरुल मोमिनीन के बारे में सुनने आए हैं, लेकिन आज आपने कुछ पढ़ा ही नहीं मौला के बारे में। लेकिन याद रखिए कि जब तक तो ये गुफ्तगू आप तवज्जो से न सुनेंगे, इमाम हसन के कारनामे आपके सामने नहीं आ सकते हैं। याद रखिए कि इंतहाई नाइंसाफी की गई है इमाम हसन की जात के साथ, और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसके पास बुनियादी वजह यह है कि खानदान बनो उमैया तक ने कोशिश की कि इमाम हसन का कारनामा छुपा रहे, इसलिए कि इमाम हुसैन जैसा जिहाद कोई अंजाम दे नहीं सकता जब तक कि उसे इमाम हसन के बारे में इल्म न हो। तो कोशिश ये की गई कि इमाम हुसैन का कारनामा आता है वो आ जाए, लेकिन इमाम हसन के कारनामे लोगों तक न पहुंचे, इसलिए कि जिसके सामने खाली इमाम हुसैन का कारनामा पहुंचेगा और वो उसके ऊपर अमल करना चाहेगा, वो हमेशा नाकाम रहेगा जब तक कि इमाम हसन की जिंदगी को इमाम हुसैन के साथ न मिलाया जाए। तो इमाम हसन ने क्या बड़ा कारनामा अंजाम किया था कि जिसके ऊपर पैगम्बर अमीरुल मोमिनीन पहले ही से मुतनब्बे करके आए थे और जिसकी खुशखबरी हमें पहले ही से मालूम हो चुकी थी। अब वो कारनामा हमारी आज की गुफ्तगू में तफसील से नहीं आ सकता, लेकिन पहले ये तारीखी पस मंजर आप सुने तो फिर इमाम हसन का जो कुछ भी किरदार और हिस्सा है तारीख इस्लामी के बनाने में और करबला के वाक़े में वो आपके सामने आएगा। इमाम हसन देख रहे थे पहली 3 खिलाफतों को, और पहली 3 खिलाफतों के बारे में आम मुसलमानों का नजरिया क्या है तो राशिदा खिलाफतें हैं, यानी सीधे रास्ते पर चल रही है। सही बुखारी की एक हदीस भी पैगम्बर इस्लाम की जिम्न में पेश की जाती है कि मेरे पास 3 साल का खिलाफत सही रहेगी और उसके बाद सीधे रास्ते पे आ जाएगी। तो ये आम मुसलमानों का नजरिया है। हम न उनके नजरिए का मजाक उड़ा रहे, न उनके नजरिए पर एतराज कर रहे, हम अपने नजरिए को बयान करना चाहते हैं अपनी तारीखों की मदद से, लेकिन इस यकीन के साथ कि हर चीज दूसरों की तारीख में भी साबित करके पेश की जा सकती है। तो अगर यहाँ पर कोई ऐसा शख्स है कि जिसके जज्बात को ठेस लगती है तो वो इस एक हकीकत को ध्यान में रखे कि ये हमारी अपनी गुफ्तगू है, निजी गुफ्तगू है, अपना अकीदा अपने अवाम तक पहुँचाना है और उन्हीं की किताबों से और इसके अंदर बिल्कुल मजबूर है इंसान क्या करे। बहरहाल अब आगे है कि इमाम हसन ने क्या तारीखी कारनामा अंजाम दिया था। इमाम हसन के मुख्तलिफ छोटे छोटे कारनामे, लेकिन इमाम हसन के इन कारनामों को समझने के लिए 2 बड़ी चीजें आपके जहन में रहें। पहली चीज तो ये कि जब पहली खिलाफत ने अमीरुल मोमिनीन की गर्दन में रस्सी डाली और डालने के बाद खींचते हुए मदीने की गलियों से खलीफा अव्वल के दरबार तक ले गए, तो ये हकीकत तो आपके सामने आ गई होगी कि मकसद मौला की बैत को लेना नहीं था, मकसद मौला से बैत तलब करना नहीं था, वरना यूं भी कहा जा सकता था कि अमीरुल मोमिनीन को पैगाम दिया जाता और सुना लिया जाता। मौला इससे पहले भी गए थे और इस मौके पर भी जाते और या फिर खुद दरबार खिलाफत के बड़े बड़े अराकीन मौला के पास आ जाते और कहते कि ये मसला है हमारी बैत करो। असल मकसद सिर्फ एक था और वो मकसद ये था कि वो ये चाहते थे कि किसी तरह अली की तलवार नियाम से निकल जाए ताकि उसके बाद हमारे पास एक बहाना बन जाए तमाम खानदान अहले बैत को तहसीब करने का और हम तारीख में कम अज कम इस चीज को महफूज करा सकें कि पहल वहां से हुई थी। अब ये लोग नहीं देखते कि पहल करने वाला सही था या गलत था, लोग तो ये देखते कि पहली तलवार अली ने निकाली और उसके बाद हुकूमत से मशहूरन मुकाबला किया। तो पूरी कोशिश पहली खिलाफत की ये थी कि किसी तरह अली की तलवार नियाम से निकल जाए। इसी मकसद के तहत घर को चलाया गया। ये आम गैरतमंद शहर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता इस वक्त जो हथियार हाथ में आता है वो लेके निकल जाता है, लेकिन मौला भी हकीकत को जानते थे इल्म इमामत से भी, और जो मौला से किसी ने पूछा भी था कि आपने तलवार क्यों ना निकाली तो यही जवाब दिया था कि वक्त रहलत मेरे शजादार भाई पैगम्बर इस्लाम मुझे बता गए थे कि क्या होने वाला और बना कर गए थे कि मैं तलवार न निकालूं। तो मौला ने सब्र किया। अब जब सरकार खिलाफत ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन किसी तरीके से हमारे काबू में नहीं आ रहे तो अब उन्होंने अमीरुल मोमिनीन की गर्दन में रस्सी डालकर उन्हें मदीने की गलियों से खींचते हुए सरकार खिलाफत तक ले चले। अब जरा देखें कि इसकी क्या जरूरत थी। अगर मौला आने पर तैयार न थे फौज का एक दस्ता ज्यादा गिरफ्तार करके जा सकता था, इस तरह से गिरफ्तार करके कि किसी को पता भी नहीं चलता, रात की तारीखी में भी गिरफ्तारी हो सकती थी, सुबह सवेरे भी गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन रोज रोशन मदीने की गलियों में और गर्दन में रस्सी डाल के ले चले ताकि हर देखने वाला देख ले। अब कितना मुश्किल एक शख्स के लिए जो है एक अजनबी शहर में हमें कोई तरह ले जाए, गुस्सा आएगा लेकिन इतना नहीं आएगा। लेकिन शहर वाले जानते हैं कि अली की तलवार की क्या बात है, वो जानते हैं कि अली बदरों और खंडकों खैबर में जब हजारों काफिरों को कत्ल कर सकते हैं तो क्या एक छोटे से गिरोह के सामने तलवार नहीं निकाल सकते। और अमीरुल मोमिनीन की पोजीशन को देखिए कि कितनी शदीद तौहीन एक शख्स महसूस करेगा कि कल यही गलियां थी कि जहां पर मैं गुजरा करता था और तमाम शहर वाले तमाम गली वाले इज्जत एहतराम में खड़े हो जाते थे, आज इसी गली से तौहीन करके ले जाया जा रहा है, कौन शख्स जब्त कर सकेगा। और यही मकसद था कि अली जब्त न कर पाएंगे, इधर अली की तलवार निकली और इधर हमें बहाना हाथ आ गया, हम इन तमाम को भी कत्ल कर डालेंगे। यूं तो अली के जानने वालों को कत्ल किया, लेकिन बड़ी बड़ी हस्तियों पर हाथ डालते हुए हर हुकूमत घबराती
आती है, सलमान फारसी जिंदा, अम्मार जिंदा, मिफ्ताह जिंदा, मौला जिंदा, इमाम हसन और हुसैन जिंदा, बिलाल हबशी जिंदा, अबू अय्यूब अंसारी जिंदा, हुज़ैफतुल यमानी जिंदा, ये सारे अमीर मोमिनीन के इंतहाई करीबी साथी थे। लेकिन इसके बावजूद मौला जानते थे कि अगर तलवार निकली, मैंने इनका मुकाबला किया तो यकीनन हो सकता है, बल्कि यकीनन मैं इसको खत्म करने में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन इसके बाद इस्लाम मुकम्मल तौर पर खत्म होकर रह जाएगा। तो अमीर मोमिनीन ने इस तौहीन को बर्दाश्त किया, तलवार नहीं निकाली। इसीलिए दरबार खिलाफत में जब पहुंचे तो एक तरफ तो इतने जोर शोर के साथ गिरफ्तार करके अली को लाया गया, लेकिन जब अली ने बैत करने से इंकार कर दिया तो आसानी से छोड़ दिया गया। फिर इसलिए कि मकसद पूरा न हुआ, अली ने तलवार निकालने में पहल न की थी, तो अब खिलाफत उला ने पहला कदम तो ये उठाया, किसी तरह अली की तलवार निकल आए। लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने एक इमाम हक की तरह से सब्र सुकून के साथ काम लिया और तलवार निकालने से इंकार कर दिया। दूसरा कदम जो उठाया खिलाफत उला ने कि अमीरुल मोमिनीन और इनके साथियों को माशी तौर पर इस काबिल न किया जाए कि ये अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकें और मजबूरन इन्हें हमें हमारे दर पे झुकना पड़े। सुना के बाग फलक को छीना, हुम्स को हराम करार दे दिया और हुक्म दिया कि हुम्स को या अहले बैत को न दे, बल्कि हुकूमत वक्त के बाद आकर जमा कराए, ताकि हर तरह का माशी गैया अहले बैत पर बंद हो जाए, तो मजबूरन ही हमारे पास आएंगे। और तीसरी कोशिश ये की कि अली का नाम लोगों के जहनों से बिल्कुल मिटा दिया जाए, ये तीसरी कोशिश की गई थी। और इसी मकसद के तहत दरबार खिलाफत ने क्या कदम उठाया? ये कदम उठाया कि जितने भी मदीने के अंदर अली की बहादुरी जानने वाले थे और जितने भी अली के साथ जंगों में हिस्सा ले चुके थे, इन सबको मुख्तलिफ बहानों से मदीने से बाहर निकाल दिया, ताकि मदीने में अली की बहादुरी जानने वाला कोई न रहे। सुना के मुसलसल जो आपने सुना है कि जंगें हुई, मुसलसल जिहाद हुए, रोम फतह हुआ, ईरान फतह हुआ, शाम फतह हुआ, फलस्तीन फतह हुआ, ये इतनी बड़ी बड़ी जंगें क्यों लड़ी गई? सिर्फ एक मकसद के तहत कि जितने भी अली की बहादुरी को जानते हैं, वो बदर वाले, औद वाले, खंदक वाले, खैबर वाले, इन सबको बाहर निकाल दिया जाए। और इसीलिए रिवायत यह है कि 313 बदर के अंदर लड़ने वाले थे और पहली जंग खिलाफत उला के जमाने में हजरत अबू बकर के जमाने में हुई जंग यमामा, उसके अंदर ये सारे बदर वाले या इनकी बड़ी तादाद को भेज दिया गया था। इसीलिए रिवायत है कि 70 वो सहाबी जंग यमामा में शहीद हुए कि जो पहले बदर में थे और बदर की जंग में हिस्सा ले चुके थे। तो वो 313 वाले हैं या न्यूट्रल है, उन सबको मदीने से बाहर निकाल दो, ताकि मदीना जो कैपिटल है वहाँ की नई नस्ल को पता चले कि अली किसे कहते हैं, और न मदीने में बाहर से आने वाले वफूद को पता चले कि अली किसे कहा जाता। ये बहुत बड़ा मकसद था पहली खिलाफत का, और इसी मकसद के तहत मुसलसल जंगों पर जंगें शुरू की गई और इतना जंग में और जिहाद में हिस्सा लिया गया कि सिर्फ इसी एक मकसद के तहत अजान तक में तब्दीली करा दी गई और हय्या अला खैरिल अमल को अजान से निकाल दिया गया। अब ये तकरीबन तमाम अहले सुन्नत के मौलवीन ने लिखा कि हज़रत उमर कहा करते थे कि 3 चीजें ऐसी हैं जो ज़माने रसूल में मौजूद थी और मैंने उन 3 चीजों को हराम करार दिया। उसमें से एक था मुतअत्तुल हज, हज के तरीके में एक तब्दीली, दूसरा था मुतअत्तुल निकाह यानी औरतों से मुता करना हराम का मैंने हराम करार दिया, वो हय्या अला खैरिल अमल जो ज़माने पैगंबर में अज़ान में मौजूद था और मैंने इस जुमले को अज़ान से निकलवाया। रमजान के महीने में हय्या अला खैरिल अमल के मसले पर तफसील से रोशनी डाल चुके कि इतनी अली के नाम को लोगों के ज़हन से मिटाने की कोशिश थी कि हय्या अला खैरिल अमल को अज़ान से निकाला गया। तो ये याद रखिए कि पैगंबर के जमाने में हय्या अला खैरिल अमल अज़ान में था, हजरत अबू बकर के जमाने में हय्या अला खैरिल अमल अज़ान में था, हजरत उमर के जमाने में इसको अज़ान से निकलवाया गया। और किसी ने पूछा था कि क्यों निकलवाया गया, तो उसकी जो तशरीह की थी उस तशरीह का मफ़हूम कुछ इस तरीके से है कि हमें ये चाहिए कि हम अपने लोगों को मदीने के बाहर जिहाद में हिस्सा लेने के लिए भेजें। अब कौन ऐसा चाहता है कि जो आसानी से अपनी जान देने के लिए और गर्दन कटाने के लिए चला जाएगा, तो कोई ना कोई उसके सामने बहाना, कोई लालच रखी जाए तभी तो वो मदीने से निकल के जाएगा। तो अब उस जमाने के अंदर जिहाद के बारे में रिवायतें पेश की गई कि जिहाद अफजल तरीन इबादत है, जो जिहाद में हिस्सा ले वो जन्नती होता है, जो जिहाद में हिस्सा ले मलाइका उसका इस्तेमाल करते हैं। बस ये कि जिहाद की सारी रिवायतें बताई गई। हज़रत उमर खुद नाक़िल है कि जब अज़ान में हय्या अला खैरिल अमल का जुमला आता और वो अज़ान में उर्दू बोलने वाले या गुजराती बोलने वालों के दरमियान नहीं दी जाती थी, अरबी बोलने वालों के दरमियान दी जाती थी, तो वो फौरन समझ लेते थे कि हय्या अला खैरिल अमल का मतलब यह है कि बेहतरीन अमल यानी नमाज की तरफ आओ। तो अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, 150-200 साल तो नया नया शौक का जाकर लड़ लिए। अब हज़रत उमर का जमाना आया, 2-2.5 साल लड़ते लड़ते हो गए, तो लोगों में ख्याल पैदा होना शुरू हुआ कि ये नमाज को अफजल तरीन इबादत है, कहा जा रहा कि बेहतरीन अमल नमाज है, हय्या अला खैरिल अमल बेहतरीन अमल की तरफ आओ, और हमने जिहाद को जिहाद की तरफ भेजा जा रहा, ये तय कर कि जिहाद
बेहतरीन अमल है। तो अब हम क्या करें, अब जब अजान में खैरुल अमल नमाज को कहा गया, इसका मकसद यह है कि नमाज बेहतरीन अमल है। तो जब नमाज बेहतरीन अमल है तो हम नमाज को छोड़कर जिहाद करने क्यों जाए, जबकि इसके अंदर न तो घर वालों से जुदाई है, न जख्मी होना है, न मरना है, न कोई और परेशानी है। और वो जो बेहतरीन अमल नहीं, उसमें हिस्सा लेने जाए घर को भी छोड़ना पड़ेगा, काम भी खाना पड़ेंगे, मर भी जाना पड़ेगा, बीवी यतीम सेवा भी हो जाएगी, बच्चे यतीम भी हो जाएंगे। गलती है ये जुमला तो आजकल रहना चाहिए था कि बीवी यतीम हो जाएगी, चलिए ये हम बीवी के मरने में यतीम हो जाएंगे। बहरहाल जो जमाने में बीवी का वो तसव्वुर नहीं था। तो अब ये कहा कि इतनी मुश्किलात में हिस्सा लो और इतना चढ़ो और करो और कटो, फिर भी बेहतरीन अमल वो नहीं है। और यहाँ घर बैठे इत्मीनान से गए मस्जिद में थोड़ा सा नमाज पढ़ी बाहर निकल जाए और इतने बेहतरीन अमल का प्रभाव मिल गया, तो कौन ऐसा बेवकूफ है या कौन ऐसा अंधा है कि इसको छोड़कर उसकी तरफ जाएगा। हज़रत उमर ने भी हकीकत को महसूस कर लिया कि लोग जिहाद से भाग रहे हैं, तो उन्होंने हुक्म दिया कि अजान में से जुमला निकाल दिया जाए, इसलिए कि तमाम खराबियों की जड़ ये जुमला, न कि जुमला रहेगा, न लोगों की तवज्जो नमाज की तरफ जाएगी, न लोग उसे बेहतरीन अमल समझेंगे। तो इतनी अमीरुल मोमिनीन से दुश्मनी थी कि अमीरुल मोमिनीन के नाम को मिटाने के लिए जिहादों का सिलसिला शुरू किया गया। और जब ये देखा गया कि लोग जिहाद में हिस्सा नहीं लेंगे, मदीने में आएंगे, और 2-2.5 साल का अरसा गुजरा है, अभी मदीने वाले अली को जानते हैं, ये सारे लोग अली को जानते हैं, कयामत हो जाएगी। तो अब ये अजान में तरमीम करके, तब्दीली करके, अजान में से जुमला निकाल के लोगों को फिर वहां से जंग की तरफ भेज दिया गया। तो अब हैसियत ये थी कि अली के नाम को मिटाया जा रहा। तरीका के साथ जितने अली के साथ लड़ने वाले ऐसे मुजाहिद, क्योंकि अली का साथ देने वाले मोमिन की भी 2 किस्में हैं, एक तो वो कि चाहे उन्हें कत्ल भी कर दिया जाए तभी वो अपने मौला के फरमान से नाचेंगे, और एक हम जैसे मोमिन कि अली की मोहब्बत है, अली की अजमत है, अली को इमाम मानते हैं, लेकिन अपनी जान जा रही हो तो ना अली याद आते हैं, ना अली की इमामत याद आती है, पहले अपनी जान बचाने की फिक्र होती है। ऐसे मोमिन हदगा होते हैं और इस्लाम ने उन्हें इतना खुदा भी बात नहीं समझा गया। तो अब ये सारे अली के साथी तो अली के साथ लड़ तो चुके हैं, लेकिन इतने पक्के मुहिब भी नहीं जितने सलमान फारसी या मिफ्ताह है कि अगर इनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तब भी वो अली को न भूले। चुनांचे इन लोगों को कि जो अली का प्रोपेगेंडा मदीने में कर सकते हैं, और वो किस तरह कर सकते हैं, वो इस तरह कर सकते हैं कि बार बार अली का तस्वीर मदीने के घरों में होगा। जब वो लोग घरों में खास आदत ये थी, और आज भी आपको अपने गाँव में नजर आएगी कि लोग शाम को जब एक मकाम पर इकट्ठा होते थे या शाम को अपने अपने घरों में जाते थे तो किससे कहानियों का रवाज होता था। आज तो रेडियो और टीवी और 50-50 ने इस खबर को पूरा कर दिया, लेकिन उस जमाने में जो ये 50-50 नहीं था, इसलिए लोग अपने अपने घरों में बैठकर अपने बीवी बच्चों से बातचीत किया करते थे, पुराने किस्से सुनाया करते थे, या एक शहर में किसी मकाम पर इकट्ठा होकर पुरानी बातें बयान किया करते थे। तो यकीनन उसमें बार बार इस्लामी जंगे आती, बार बार अली का नाम आता, तो वो तमाम के तमाम जो उस जमाने को याद किए हुए थे उनको बाहर भेज दिया गया। वो बाहर था कि वो बाहर जाए, जो कुछ कहना है बाहर कहे, मदीने में किसी को पता न करे। ये पहला कदम उठाया गया अली के नाम को जहन से मिटाने के लिए। दूसरा कदम जो उठाया गया कि वो तमाम कौमें जो पहले ही से खत्म हो रही थी, और इब्न ने भी अपनी किताब में लिखा कि रूम और ईरान तो बिल्कुल खत्म हो चुके थे, मामूली पर लश्कर भी हमला करता तो वो जीता खा जाते, उनके ऊपर हमला कराया गया ताकि अब दूसरे बहादुरों का नाम बदल करने का मौका मिले। खालिद इब्न वलीद सैफुल्लाह का मुखालिफ कर दिया गया, अबू उबैदा जर्राह फातिह शाम कहलाए, साद इब्न अबी वक़ास फातिह मिस्र कहलाए, यानी फातिहीन के बहुत बड़ी खेत को तैयार करके मार्केट में पहुंचा दिया गया ताकि ये नए नए बहादुरों के नाम लोगों के जहन में बैठ जाए, अली का नाम मिटता चला जाए। और इसी मकसद के तहत न अली को किसी जंग में भेजा गया, न इमाम हसन को किसी जंग में भेजा गया, न इमाम हुसैन को किसी जंग के अंदर भेजा गया। क्या अगर ये गए तो ये तो जहाँ जाएंगे वहाँ इनकलाब आ जाएगा, और उसके बाद हमारे बनाए हुए रेडीमेड फातों को कौन याद रखेगा। इस एतबार से इनको निकलने भी ना दो, ये मैदान में जाए भी नहीं, दूसरे जाए ताकि उनकी शोहरत भी हो जाए और लोगों के जहन से इनका नाम मिटता चला जाए। ये दूसरा कदम उठाया गया। और तीसरा कदम ये उठाया गया कि झूठी अहादीस का सिलसिला शुरू कर दिया गया कि हर वो फजीलत जो अली के पास मौजूद है, बिल्कुल ऐसी ही फजीलत की एक दूसरी हदीस बनाओ, और वो दूसरी हदीस बनाने के बाद किसी साहबी का नाम उसके अंदर डाल दो और उसे फैला दो, उसे मशहूर कर दो, ताकि हर एक इस झूठी हदीस को सुनते सुनते या तो सच्ची हदीस को भूल जाए, और या फिर वो एक तरह से कंफ्यूज हो जाए, एक तरह से खुदगर्ज हो जाए कि ये हदीस सच्ची है या वो हदीस सच्ची है, चुनांचे उसका एतबार इस पर रहे न उस पर रहे, और उनका मकसद हासिल हो जाए। ये तीसरा कदम था। और इन 3 बातों को ध्यान में रखें तो इमाम हसन का किरदार आपके सामने आएगा कि कितना बड़ा जिहाद इमाम हसन ने हमें हमारे सामने पेश किया, लेकिन आज तक हमारी तवज्जो उसकी तरफ नहीं। उलमाए कराम ने किताबों में लिखा है, लेकिन हमारी तवज्जो नहीं कि इमाम हसन ने कितना बड़ा हिस्सा लिया वाक़या करबला में। और यकीन के साथ कहा जा सकता है कि अगर इमाम हसन 10 साल तक घर के अंदर बैठ कर मुहिम न चलाते तो कभी हुसैन मैदान करबला में न निकल के ये इमाम हसन की मुहिम थी। तो ये जहन में एक नुक्ता रहे, आइंदा जब आप तकरीर में सुनेंगे तो आपके सामने बात वाक़ई होकर आएगी कि कितना बड़ा इमाम हसन का हिस्सा। तो ये तीसरी साजिश क्या थी कि अली के खिलाफ हदीसें बनाओ। ये साजिश पहले
तीन खिलाफतों में तो जरा दबी हुई थी, इसलिए दबी हुई थी कि झूठी अहादीस का बनाना इतना आसान न था। वो पूरी नस्ल मौजूद थी जो रसूल का जमाना देखे हुए थी, लेकिन इन पहले तीन हाकिमों ने इस किस्म का ग्राउंड तैयार कर दिया था, इस किस्म की सतह तैयार की थी कि अली का नाम जहन से निकल गया, अली के मुकाबले में दूसरे फातिमीन का नाम आ गया और लोगों के जहन में जो अली की बहादुरी थी, अब उसके अंदर कुछ दूसरे लोग भी शरीक हो गए कि ये अली भी बहादुर है, खालिद इब्न वलीद भी बहादुर है, अली भी बहादुर है, साद इब्न अबी वक़ास भी बहादुर है, अली भी बहादुर है, अबू उबैदा जर्राह भी बहादुर है, यहाँ तक कि अली भी बहादुर है और मुआविया इब्न अबू सुफियान और यजीद इब्न अबू सुफियान भी बहादुर है। इस तरह कोशिश की गई तो ये तीन खिलाफतों ने एक तरह से ग्राउंड तैयार किया कि अली का नाम लोगों के जहन से निकल जाए और इसी से बात में फायदा उठाया अमीर मुआविया। अमीर मुआविया वो हस्ती कि अमीर मोमिनीन एक मरतबा जमाने का शिकवा करते हैं, ये कहते हुए कि जमाना कितना नापदर हो गया और जमाना कितना इंसान फरामोश हो गया है कि मेरा नाम और मुआविया का नाम साथ साथ लिया जाने लगा। इतना जमाने ने मुझे गिराया और इतना खटाया कि अब ये कहा जाता है कि अली और मुआविया की जंग हुई, ये आपस है या वो आपस है। वो पहले दिन जो कुछ भी थे लेकिन अली उनके नाम अली के नाम के साथ आया तो अली ने इतना अफसोस नहीं जाहिर किया कि ज़ाहिरी एतबार से रसूल के साथ एक जंगों में हिस्सा लिया था, लेकिन अली कह रहे कि अब इतना जमाने ने मुझे फर्क कर दिया, इतना गिरा दिया कि मेरा नाम और मुआविया का नाम साथ साथ लिया जाने लगा। तो अली का नाम तो मुआविया के साथ मुख्तसर के अरसे के लिए दिया गया और ये कहते हुए दिया गया कि अली हाकिम से मुआविया गवर्नर का, गवर्नर ने बगावत की। ये सब कहते हैं तो इमाम हसन के दिल पर क्या गुजरी होगी जब ये कहा गया कि मुआविया हाकिम था, इमाम हसन उसकी रियाया में शामिल थे और इमाम हसन ने उससे जुल्म की थी। अली तो इतनी बात पर बहस बलागा में हक मौजूद है, तब न कर सके कि जमाने ने मुझे इतना गिरा दिया कि आज मुआविया का तस्करा मेरे साथ हो रहा तो जरा और करें। तस्कार इमाम हसन ने किस तरह गुजारे होंगे कि वहां तो बराबरी की बात भी नहीं, मुआविया को हाकिम कहा जाता है, इमाम हसन को रियाया कहा जाता है। इस तमाम पर जिल्लत के बावजूद, इसके बावजूद इमाम हसन का किरदार क्या था कि आइंदा आएगा, लेकिन आपको गुफ्तगू कि पहले तीन हाकिमों ने इस तरह की एक सभा तैयार कर दी ताकि बाद में आने वाला अब अगर झूठी हदीसें लेकर आए तो जो कि सच्ची हदीस तो जहनों से निकल चुकी है, अली का नाम तो जहनों में नहीं रहा, झूठी हदीस फौरन कबूल कर ली जाए। इसीलिए हुक्म यह है और ये तारीख का वो वाक़या है कि जहाँ इमाम हसन साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए कि अमीर मुआविया का दौर है और इमाम हसन का भी वही दौर है कि अमीर इस्लाम ने हुक्म जारी कर दिया कि जो शख्स भी अली और औलाद अली की मजम्मत में हदीस बनाए एक दिरहम हमारे खजाने से ले जाए और जो शख्स भी हजरत उस्मान की फजीलत में एक हदीस बनाए वो भी एक दिरहम हमारे खजाने से ले जाए और जो शख्स अली और औलाद अली की शान में कोई हदीस बयान करे उसके घर को जब्त करके शहर से जलावतन कर दिया जाए और अगर कोई मामूली शख्स है तो उसकी गर्दन को उड़ा दिया जाए। तो खजाना खोल दिया गया और जब खजाना खुलता है तो हर जमाने में लोग वही कारोबार करते हैं जिसकी सबसे ज्यादा मांग हो, सप्लाई एंड डिमांड का वो उसूल आपके जहनों में भी होगा। तो आप क्योंकि डिमांड किस चीज की थी, हजरत उस्मान के फजाइल की हदीस की, डिमांड किस चीज की थी, हजरत अली की मरम्मत की हदीस की। तो रिवायतों में लिखा गया कि हर शख्स जिसे थोड़ी सी अरबी बोलना आती थी, यानी अरबों में जो फसी अरबी बोल सकता था, मस्जिद में बैठ जाता और कहता था क़ाल रसूलुल्लाह ने ये कहा, क़ाल रसूलुल्लाह ने ये कहा, यहाँ तक कि हर मस्जिद हदीस शादी का सर बन के रह गया था और बेशुमार हदीस बनाई गई अली और औलाद अली की मरम्मत में और हजरत उस्मान की फजीलत में। हजरत उस्मान की मरम्मत हमारा मकसद नहीं क्योंकि उन बेचारे का कोई कसूर नहीं है, दूसरे हैं कि जो सारे कारनामे अंजाम दे रहे हैं और उन बेचारे का क्या कसूर है वो इंशाअल्लाह अपने मकाम पर आएगा। तो अब अमीर मुआविया ने हुक्म जारी कर दिया कि जो एक हदीस लेकर आएगा एक दिरहम उसे मिल जाएगा। और कौन ऐसा शख्स है कि जो एक दिरहम हो करके अगर 10 हदीसें बना ले, कितनी देर लगती है, 10 मिनट लगते हैं 10 हदीसें बनाने में, तो 10 दिरहम आपके खड़े हो जाएंगे और वो जमाना के एक दिरहम में इंसान ऐशो आराम के साथ जिंदगी गुजार सकता था। तो रिवायत यह है कि इतनी हदीसें बन गई हजरत उस्मान की शान में कि आज कोई नहीं, मुआविया घबरा गया कि इतनी सारी हदीसें बन गई, कोई भी इस पर यकीन कर ही नहीं सकता। अमीर मुआविया घबरा उठा कि तो नामुमकिन है, कौन इतनी सारी हदीसों को मानेगा। तो दूसरा हुक्म जारी किया, पहले हुक्म में तंजीम करते हुए दूसरा हुक्म जारी किया कि नहीं अब कोई जरा बड़े भाइयों की तरफ से तवज्जो दे और जो हजरत अबू बकर और हजरत उमर की शान में हदीस बना के लाएगा उसको एक दिरहम इनाम दिया जाएगा। तो जरा गौर करें कि वो कितनी अहादीस होंगी कि हजरत उस्मान की शान में हदीस बनवाने वाला घबरा उठता है और वो ये कहता है कि जमाना यकीन नहीं कर सकता इन अहादीस के ऊपर। तो अब जितनी अहादीस हमें नजर आती है सबकी सब इसी किस्म की है। तो अहादीस शादी का एक कारखाना खुल गया, अहादीस बनाई गई और इतनी शिद्दत और शान के साथ बनाई गई और अहादीस बनाने वाले इतने सीधा सिले हुआ करते थे कि रिवायतों में गालिबन इमाम अहमद का वाकया है, इमाम अहमद इब्न हंबल का या किसी और इमाम का वाकया, हमारे नहीं अहले सुन्नत के किसी इमाम का वाकया। तो एक मरतबा मस्जिद कूफा में गए या कूफे के किसी और मकाम पे गए तो उन्होंने वहां पे देखा कि एक शख्स मिंबर पे खड़ा और खड़ा होने के बाद कह रहा कि अहमद इब्न हंबल ने रिवायत बयान की है कि जो शख्स एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता खुदा उसके लिए जन्नत में एक परिंदा पैदा करता है जिसकी चोंच सोने की होती है और वो हर वक्त इस ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले की तारीफ करता रहता। तो अहमद इब्न हंबल मस्जिद में बैठे एक मरतबा हैरान हो गए कि मैंने तो आज तक ऐसी हदीस नहीं कही थी कि मेरे नाम की हदीस कहाँ से आ गई। तो वो खड़े हो गए कहने लगे कि ऐसा तूने ये हदीस किससे सुनी है? कहा कि अहमद इब्न हंबल से सुनी है। तो कहा कि
मेरा ही नाम अहमद इब्न हम्बल है, मैंने तो आज तक ऐसी हदीस नहीं कही। तो देखिए सीधा दिलेरी देखिए, वो रावी कहता है कि फैज जा तू अकेला ही अहमद इब्न हम्बल नहीं, 17 अहमद इब्न हम्बल आजकल अरब में मौजूद है। ये सीधा दिलेरी है कि हदीस बयान की जा रही, सामने वो शख्स मौजूद है जिसका नाम लिया जा रहा और कहा जा रहा है कि इस्लाम से तो कहता है तुझे क्या बीमारी हो गई, तुझे क्या तकलीफ हो गई, ये कैसे बता दिया गया। इतने सीधा दिलेर अहादीस के बनाने वाले थे, यहाँ तक कि खुद हमारे इमाम का वाक़या है कि सुफयान सौरी इमाम जाफर सादिक हमारे छठे इमाम के पास आते हैं और सुफयान सौरी ने रिवायत किया है कि 3000 से ज्यादा हदीसें छठे इमाम के हवाले से नकल की थी और उन्हें उस वक्त वो छठे इमाम को नहीं पहचानते थे, इतना उन्हें पता था कि जाफर इब्न मोहम्मद की बड़ी हस्ती है और सब उसे मदीने में माना करते। वो कूफे के रहने वाले थे, उन्होंने बयान की। जब छठे इमाम के पास आए तो एक मरतबा इमाम से मुलाकात की और मुलाकात किस तरह हुई, वो भी एक तारीखी वाक़या है कि रास्ते में या किसी के घर से मुलाकात हो गई। सुफयान को नहीं पता कि वही शख्स है कि जिसके हवाले से मैं 3000 हादीस बयान कर चुका हूँ। एक मरतबा इमाम ने देखा, कहा क्या है सुफयान, हमने सुना है कि तू मदीने के शख्स जाफर इब्न मोहम्मद के हवाले से हादीस बयान किया करता है। सुफयान ने कहा यकीनन मैं उसके हवाले से हादीस बयान करता हूँ। इमाम पूछते हैं कि हमने सुना है कि तूने उसके हवाले से 3000 हादीस बयान कर दी। कहा कि हाँ मैंने 3000 से ज्यादा हादीस बयान की है। तब इमाम ने सवाल किया कि ऐ शख्स अगर वो आकर ये कह दें कि मैंने ये अहादीस आज तक किसी से नकल नहीं की तो क्या तू उन अहादीस को वापस ले लेगा। तो एक मरतबा सुफयान सौरी, जिनका बहुत बड़ा मकाम है सूफियों में, वो कहते हैं कि नहीं, अगर वो आकर भी कहते हैं कि मैंने ये अहादीस बयान नहीं की तो मैं वापस नहीं लूंगा। इमाम कहते हैं कि क्यों नहीं लेगा, तो कहने लगा कि अगर मैं ले लूँ तो फिर किसके हवाले से बयान करूँ, उसका नाम भी तू मुझे बता दे, फिर उसके बाद मैं इन अहादीस को वापस ले सकता हूँ। तो ये हालत हो गई थी। सीधा तहरीके के सामने बैठे हुए इमाम है, कह रहे हैं कि मैंने बयान नहीं की, वापस कर दे अहादीस। तो कहता है कि अगर आपके हवाले से मैं बयान करूँ तो आप ही दूसरे का नाम बता दीजिए जिसके हवाले से झूठी अहादीस बयान कर सकूँ। तो जब इस किस्म के अहादीस नकल करने वाले थे तो उस वक्त इमाम हसन देख रहे हैं ये मंजर, इमाम हसन जमाने को देख रहे हैं। अब जरा देखें कि एक फर्द वाहिद है, इमाम हसन के पास अगर एक गुरो और जमात होता तो इमाम घर ही में क्यों बैठते, बाहर निकलकर जिहाद में हिस्सा लेते। लेकिन इमाम हसन तन्हा 2-4 का 15 मुखलिस सियां, दूसरी तरफ पूरी हुकूमत का पूरा खजाना और लोगों की अपनी साथी नफरत की है खानदान अहले बैत से, वो सब इकट्ठा होकर झूठी अहादीस बयान कर रहे और अहले बैत के नाम को मिटा रहे। इमाम हसन तन्हा मुकाबला कर रहे और सच्ची अहादीस को बयान कर रहे और सच्ची अहादीस को फैला रहे, जिसका नतीजा क्या निकला। अब जरा देखें कि इमाम हसन एक फर्द वाहिद का नाम, इस फर्द वाहिद ने मुकाबला किया पूरी हुकूमत का। हमारे लिए ये बहरहाल तारीफ शर्म बात नहीं कि इमाम हसन ने सुलह कर ली। जरा देखें कि सुलह करके इमाम हसन ने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि एक तरफ पूरा हाकिम शाम है, हाकिम शाम की पूरी हुकूमत है, हदीस शादी की फैक्ट्रियां हर घर के अंदर सजी हुई है, इसमें आपकी मर्जी के मुताबिक हर किस्म का माल तैयार करके रवाना किया जा सकता है। और उस रिवायत में कि अगर आप थोक के भाव से हदीसें बनवाएं तो अलग उसके दाम लिए जाते थे और अगर आप छोटे के भाव से हदीसें बनवाएं तो उसके दाम अलग लिए जाते थे। कोई एक हदीस बनवाए जाए तो ज्यादा कीमत दी जाती थी और इकट्ठा 50 हदीसें आप बनवा दी अपने मतलब की तो उसके अंदर थोड़ा सा वहां को कमी कर देता था हदीस का बनाने वाला। तो एक तरफ ये सिलसिला चल रहा, दूसरी तरफ एक इमाम हसन की बात है और एक इमाम हसन की बात ने वो कारनामा अंजाम दिया कि शायद ही किसी और शख्स के जहन में या किसी इंसान के जहन में आ सकता कि इतनी बड़ी हुकूमत का मुकाबला कोई शख्स करे जिसके पास कोई वसीला नहीं, माहौल से सटा हुआ मदीने के संग और तारीख घर के अंदर जिंदगी गुजार रहा, न फौज है न साथी है न ताकत है, लेकिन वो कारनामा इमाम हसन ने अंजाम दिया कि यही शाम वाले जिनके बारे में एक रिवायत हमने पहले बयान की है कि शाम के लोग इतने जाहिल हो चुके थे कि उनको यही पता नहीं था कि अली कौन है, फातिमा कौन है, इतने जाहिल। वही मकसद जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने से शुरू हुआ था, अमीर मुआविया के जमाने में अपने उरूज पर पहुंच गया कि शाम वाले बिल्कुल जाहिल हो गए कि किसे कहते हैं अली कौन है, फातिमा कौन है, हसन और हुसैन, बल्कि यहाँ तक के वाकयात जो तारीखों में है और जो के वक्त में सिर्फ 2 मिनट रह गए इसलिए वाकया हम नहीं बयान करेंगे मौका मिला तो आइंदा तकरीर में। यहाँ तक के शाम वाले अमीर मुआविया को अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह कह के सलाम करने लगे थे। इतना उनकी जहनियत को बदल दिया गया था क्योंकि रिवायत में यह है कि शाम की हुकूमत ने कानून जारी किया था और कानून ये था कि स्कूल जो है वो सुबह से शाम तक के हुआ करेंगे। पहले जमाने में स्कूल वही थे शिफ्टों वाले कि कुछ लोग सुबह पढ़ते थे कुछ लोग शाम को पढ़ा करते थे, लेकिन पहली मरतबा अमीर शाम ने हुक्म जारी किया कि अब स्कूल तमाम दिन से हुआ करेंगे सुबह से लेकर शाम तक के और दोपहर को जब बच्चों को भूख लगेगी तो खाना हम दिया करेंगे और खाना दिया करते। अब जरा आप गौर करें कि इनमें इतनी सखावत कहाँ से आ गई कि ये खाना लुटाने के ऊपर तैयार हो गए। तो सखावत इसलिए आज कि हुक्म ये दिया गया था कि बच्चे को खाना तो मिलेगा लेकिन एक शर्त के ऊपर खाना मिलेगा, वो यह है कि खाना शुरू करने से पहले जहाँ वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े वहाँ फौरन अली और आले अली पर लानत का जुमला अपनी ज़बान से निकाले। ये बाकायदा हुक्म था। आप जरा देखिए कि नन्हा बच्चा मासूम बच्चा कोई मौलूद यूलिद वाला फितरत इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन जो बचपने की उम्र में ये देखे कि मैं अली पर लानत भेज रहा हूँ तो मुझे खाना मिल रहा और अली पर लानत न भेजूँ तो उस दिन मुझे खाना नहीं मिलता, तो बताइए उसके दिल में क्या ख्याल पैदा होगा। इसीलिए रिवायत है कि कुछ शामी हकीकतन बिल्कुल मासूम है और उनको कोई गुनाह भी नहीं मिलेगा इसलिए कि उनकी ऐसे माहौल में परवरिश हुई। तो इतने जाहिल शामी और यकीनन उनको जाहिल
महल रहना चाहिए जब इस माहौल में उनकी परवरिश की गई। लेकिन ये हमारी तारीखों में और दूसरों की तारीख सवरी के अंदर आज हम देखते हैं ये वाकयात मौजूद है कि जब असीरान करबला का काफिला करबला से चला था, अब ये इस वक्त तारीख की गुफ्तगू करबला से चला था और शाम तक गया था, तो कई मकामात ऐसे थे कि जहाँ रास्ते में पड़ने वाले शहरों ने मुकाबला किया इस फौज का, अपने शहर के दरवाजे बंद कर लिए, इस फौज को खाना और पानी देने से इंकार कर दिया कि तू नवाज़ रसूल को कत्ल करके आ रहा, हमारे ऊपर खुदा का कलम नाज़िल होगा अगर हम तो तुझे अपने यहाँ पन्ना दे देंगे, हमारा शहर भी तो नाबूद होकर रह जाएगा अगर हम तुझे खाना और पानी दे देंगे। वो शाम कि जिसको बचपने से लेकर बुढ़ापे तक सबक पढ़ाया गया अली और आले अली की नफरत का, वो शाम जो इस झूठी अहादीस के जमाने के अंदर जिंदगी गुजार रहा था, वो शामी जो पैदा होने से यही सुनता है कि अली और औलाद अली पर लाना लो। ये क्या मौजूदा है कि 11 साल होते हैं या 2 साल होते हैं मुआविया के इंतकाल को, और आज उसमें इतनी जुर्रत आ गई कि वो एक मरतबा फौज यजीदी को इस जुर्म में कि उसने आले रसूल को कत्ल किया, अपने यहाँ आने नहीं देते, इस जुर्म में आले रसूल को कत्ल किया, खाना और पानी तक नहीं पहुंचाते, बल्कि रिवायत तो ये है कि कुछ मकामात पर शहर वालों ने निकल कर जंग की थी फौज से, और इसीलिए ये भी रिवायत है और ये मसाइल की रिवायत आपको मिलेगी। ये भी रिवायत है कि ऐसे मकामात है कि जहाँ मुसलसल 2 दिन तक पैदानियों को ऊँट की पीठ से बांधकर ऊँटों को बताया गया था, इसलिए कि पीछे से शहर वाले हमला करने के लिए आ रहे थे। तो अब जरा देखिए वो शाम के जहाँ के लोग इतने जाहिर, ये पर क्या कोई मौजूदा है कि 2 साल में इतनी बड़ी तब्दीली कि आज उनके दिल में आले रसूल की इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि वो फौज यजीद का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। आज उनके दिल में इतनी आले रसूल की मोहब्बत पैदा हो गई कि वो अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे, पानी तक देने के रवादार नहीं ऐसे फौज को। ये किसका कंट्रीब्यूशन है? तारीख बिल्कुल खामोश है, तारीख आपको नहीं बताएगी, लेकिन अगर आप अकल लड़ा तो अकल फौरन कहेगी कि ये इमाम हसन का कारनामा है कि पहली 3 खिलाफतें और मुआविया का पूरा जमाना झूठी आदि बयान करके अली के नाम को जहनों में निकाल रहा, और इमाम हसन की वारिस हस्ती है जो अपने मकाम पर बैठकर अपने पापा की और अपने नाना की और अपनी मादर करामी की और अपनी फजीलतों को बयान कर रहे। पूरी हुकूमत की प्रोपेगेंडा मशीनरी का मुकाबला इमाम हसन ने किया और तारीख में बताया कि पूरी हुकूमत नाकाम हो गई, इमाम हसन अपने काम में कामयाब हो गए, इसलिए कि इमाम हसन ने शाम में जो इनका इस तरह से पूरे शाम वाले इनके गुलाम हो चुके थे, इसलिए कि खिलाफत खुला हज़रत अबू बकर का जमाना 11 हिजरी का था, वहां से 61 हिजरी तक 50 साल तक पूरा शाम अमीर मुआविया के हाथ में था। 50 साल तक जो भी शाम में पैदा हुआ उसके जहन में बड़ी अकीदा पैदा जो अमीर मुआविया ने सिखाया। लेकिन ये इमाम हसन का कारनामा, या इमाम हसन का एहसान हम पर और तमाम मुसलमानों पर कि 10 साल तक इमाम हसन ने घर में बैठकर सिर्फ अहादीस नशर की और इतनी कसरत के साथ और इतनी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ कि उसी शाम के अंदर इमाम हसन अपने और अहले बैत के हामी पैदा करने में कामयाब हो गए। इतने जियाद के दरबार में लोग खड़े होते हैं, यजीद के दरबार में लोग खड़े होते हैं और एक मरतबा यजीद को बुरा भला कहकर कत्ल हो जाते हैं, कत्ल हो जाना गवारा कर लेते हैं, आले रसूल की तौहीद गवारा नहीं करते। ये वही लोग थे कि 40 हिजरी में जब अमीरुल मोमिनीन की शहादत हुई तो ये कितना दिल में जज्बा लगा कि इमाम हसन का साथ देते, लेकिन आज उसी दरबार यजीद में खड़े दरबार में अकेले खड़े होकर जानते रहे और उस वक्त फौज के साथ निकल कर भी मुकाबले पर तैयार न थे। तो ये इमाम हसन का इतना बड़ा कारनामा है कि जितना इंसान गौर करे उतनी अजमत इमाम और मारिफत इमाम बढ़ती चली जाती है। तो ये सबसे पहला मकसद है जो सुनो के जरिए इमाम हसन ने हासिल कर लिया। अगर इमाम हसन जंग करते रहते और मुतमादिद जंग करते रहते तो ये मौका उन्हें शामिल था जो घर में बैठकर इमाम हसन ने हासिल किया, और इसी की वजह से इमाम हुसैन जिहाद भी कर सके और जिहाद के बाद असीरान करबला को ले जाकर इमाम हुसैन भी जानते थे कि मैं ले जा रहा हूँ ज़ैनब को, हमें खुशबू को इस पर क्या मुसीबतें पड़ेंगी। ये आएगा इमाम हुसैन की गुफ्तगू में। फिर भी इमाम हुसैन जान बूझ कर ले गए थे और वो जान बूझ कर इसलिए ले गए थे ताकि मेरे मरने की खबर को छुपाया न जा सके। तो इमाम हसन ने करबला से शाम तक शाम के तमाम शहरों को इतना बेदार कर दिया कि इमाम हुसैन जिस मकसद के लिए असीरान करबला को लेकर वो मकसद हासिल हो गया। और ये इंतहाई अहम नुक्ता है जो वक्त की कमी की वजह से हमने जल्दी जल्दी बयान कर दिया। सुलह इमाम में 5 या 6 शर्तें, और जितना इंसान गौर करता जाता है सुलह नामे की हर शर्त को देख देख कर हैरत बढ़ती जाती है कि इमाम हसन ने कितने तदब्बुर से और अपने नूर इमामत की मदद से किन किन शराइत को लिखवा लिया और किस तरह से सुलह हसनी की वजह से आज दीन इस्लाम हम तक पहुंचने में कामयाब हुआ। वरना याद रखिए कि इमाम हसन आखिरी हस्ती, अगर इमाम हसन की 10 साल जंग करते हुए गुजार देते थे और यही मकसद का अमीर मुआविया था कि इनको जंगों में उलझाया जाए ताकि जो हमारा मकसद है कि अहले बैत की अजमत जहनों से निकले, वो इस 10 साल में 10 साल ये थे और 30 साल पहले तो मेरे 40 साल पूरे में जाते एक पूरी जनरेशन पैदा होकर खत्म हो जाती। और अब जो नई नस्ल आती वो बिल्कुल बेगाना होती, बिल्कुल लाताल्लुक होती, बिल्कुल जाहिल होती हज़रत इमाम से। तो इमाम ने इसीलिए 10 साल घर में बैठकर बेइज्जती गवारा कर ली ताकि अपने इस मकसद में कामयाब रहे कि अज़मत अहले बैत ज़हनों में रहे और सही दीन और सही मज़हब हम तक पहुंच जाए। ये इमाम हसन की सुलह का एक पहलू और एक मकसद है। अभी तो जैसे जैसे हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी आपके सामने बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ आते जाएंगे कि हैरत बढ़ती जाती है कि इससे पहले हमारी तवज्जो इन चीज़ों की तरफ क्यों न गई थी। और आज की गुफ्तगू से हमको अंदाजा हुआ सुलह इमाम के बारे में 5 चीजें आप तक पहुंचाना थी और हमारा अंदाजा ये था कि आज 2 चीजें पहुंच जाएंगी और बाकी 3 चीजें आइंदा तकरीर में। लेकिन वक्त के इतने गुजर जाने के बावजूद कि आज फिर मसाइल इत्तिफाक के वक्त में 6 मिनट की कमी वाक़ई हो गई है, हम अपनी सिर्फ एक बात आप तक पहुंचाने में कामयाब हो सके। इसका मतलब यह है कि आइंदा हमें